morning everyone. Hello standard 4th. In these sessions we will continue about our chapter The Giving Tree and the exercise A. Reading is fun and the questions number 3. The third question is what did the boy make with the branches of the tree? यानी कि जो बॉय था, जो लड़का था, उसने उस पेड़ की जो डालियां थी उसका क्या किया? तो उसने घर बना लिया. What did the boy make with the trunk of the tree? The boy made a boat. Bought the trunk of the tree. How was the stump of the tree useful? For sitting. The stump of a tree is useful for sitting. Why is the play called The Giving Tree? यानी कि इस नाटक को हम गिविंग ट्री ही नाम क्यों दिया? तो of course in the whole drama the tree is helpful and to give us something to a boy always and helped him. The next exercise is word building. Make a new words and complete these sentences. यहाँ हमें वर्ड्स को देखकर सेंटेंस है वो कंप्लीट करने हैं. The children love to sing. The children love to sing loudly. Read your lesson silently. Throw the ball slowly. The tree gives its fruit to the boy happily. Do your work neatly. अब देखते हैं next exercise. Second one is fill in the blank with the correct word. यहाँ हमें correct words को choose करके इस सारे blanks को fill करना है. My mother went to the market and bought a kilogram of apple, a dozen bananas and a dozen oranges. I love oranges, so I ate an orange. My brother wanted a banana and my sister asked for an apple. A tree has one trunk but many branches. A branches has a number of leaves and flowers. तो यहाँ हमें सही चूज करके वर्ड्स चूज करके इस ब्लैंक को फिल किया. अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स टॉक. व्हाई शुड वी नॉट कट ट्रीज? यानी कि हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? तो हम लिख सकते हैं वी शुड नॉट कट अ ट्री बिकॉज वी कैन गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द ट्री. ट्री गिव्स अस फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो. दैट्स वाई सो ट्री इज द वेरी important. At the end of the play, only the stump of the tree is left. Find out if it will grow into a tree again. If it will grow the tree again, it look like very beautifully. Third, say the given sentences with the different expressions. यानी कि यहाँ जो expressions बताए हैं वो हमें आपको उसी तरह उसके हाव भाव एक्सप्रेशंस करने फेस के. फर्स्ट देखो कम एंड प्ले विथ मी. तो आप अपने फ्रेंड के साथ ऐसे कह सकते हो कि आओ और मेरे साथ खेलो. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स, मुझे कई सारी चीज़ें चाहिए और मुझे फन चाहिए. Come and climb up my trunk and swing from my branches. यानी कि झूला झूलने के expressions. Cut down my trunk यानी कि जब पेड़ काटते हैं तो कैसा होता है तब. I am too old to swing on branches यानी कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ झूला झूलने के लिए. I am too tired to climb यानी कि मैं थक चुका हूँ चढ़ने के लिए. तो ये थे सारे sentences. अब देखो let's write these sentences in the correct order. Also choose the right word from the box and add it before each sentences. Remember to put a comma after it. For example, finally. A.
It give him its branches to make a house. तो हमें यहाँ क्या लिखना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है और सही वर्ड से उसको चूज करना है। तो पहले हम कहेंगे फर्स्ट इट गिव हिम इट ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। अब देखो आगे क्या है, इट आस्क हिम टू सिप ऑन द स्टम्प। तो इसमें से देखो हम कौन सा वर्ड चूज करेंगे, देन होगा। Then it asked him to sit on the stump. It gives him its trunk to make a boat. After that, it gave him its trunks to make a boat. The tree gave its apple to the boy. तो यहाँ हम लिखेंगे फाइनली, सॉरी यहाँ आएगा फाइनली इट्स गिव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, और लास्ट में लिखेंगे द ट्री गिव, देन द ट्री गिव्स इट्स एप्पल टू द बॉय। अब देखो सेकेंड, वर्क इन अ ग्रुप एंड डिसाइडेड द थिंग्स दैट यू कैन डू, हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी ओल्ड पर्सन। Now write the 5 of things that you will do. यानी कि यहाँ आपको ये लिखना है कि जो 5 चीज़ें आप कर सकते हो, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी, यानी कि अपने दादा और दादी के साथ भी जो कर सकते हो 5 चीज़ें, वो आपको यहाँ लिखना है। राइट 5 थिंग्स। तो फर्स्ट लिख सकते हो एक्सरसाइजिंग, वॉकिंग, राइटिंग, रीडिंग etc. whichever one you write. अब है लेट्स एक्ट। फर्स्ट, you are reading and talking about trees. You are thinking about trees too. Can you make the shape of the tree with the body? तो यहाँ आपको देखो क्या कहा है कि आप है वो रीडिंग, आप पेड़ के बारे में बातचीत करते हो, उसके बारे में सोच सकते हो। क्या आप ट्री की तरह फेस, तो क्या आप बॉडी को उस ट्री शेप में रख सकते हो? तो देखो लेट्स सी योर ब्रांचेस। देखो आपको इस तरह खड़े होकर आप अपने बॉडी को ऐसे पेड़ की तरह शेप दे सकते हो। देखो लेट्स सी योर ब्रांचेस। फिर है लेट्स सी अ फुल ट्री विद द फ्रूट्स एंड लीव्स। फिर आपको पेड़ को देखना है, क्या देखना है, उसके फ्रूट्स और फ्लावर्स को देखना है। नेक्स्ट कट अ ट्री विद द ओनली अ ट्रंक। Enact a tree with the only a stump left. फिर आपको ऐसे एक्ट करने हैं कि पेड़ के सिर्फ स्टम्प ही बचे हैं, ओनली सिर्फ ट्रंक ही है। कम्युनिकेट द आइडिया इन दिस प्ले। फिर आपको उसके बारे में प्ले की कॉपी करनी है, यानी कि ड्रामा करना है। सो यू कैन डू इट इन योर फ्री टाइम। अब देख तो आगे, यूज योर बॉडी टू। यदि आप इस पेड़ की तरह देखो इस तरह खड़े होते हो तो क्या कर सकते हो, स्ट्रेच, यानी कि अपने शरीर को खींच सकते हो। बेंड भी कर सकते हो बॉडी को। जंप कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, हॉप कर सकते हो और चढ़ भी सकते हो। टू क्लिम यानी कि चढ़ भी सकते हो। तो इस तरह आप अपने बॉडी को स्ट्रेच, बेंड, जंप, हॉप, ये सारी एक्शंस है वो कर सकते हो। अब देखो ऑन द पेज नंबर 129, चिंता चितू। देखो यहाँ एक छोटी सी राइम है। देखो चिंता चितू is a terminate tree. This famous terminate tree is in Gwalior. This famous terminate tree is in Gwalior. It grows over the Tansen storm. Tansen was a great singer. People in Gwalior says, eat the leaves of this terminate tree and you will also sing like a तानसेन। देखो ये एक फेमस पेड़ है जिसका नाम है चिंता चेतू। ये चिंता चेतू एक टर्मिनेटर ट्री है जो अकबर का एक दरबारी था, कॉटियर तानसेन।
वो तानसेन बहुत ही अच्छा गाता था, ही इज टू गुड इन सिंगिंग। तो और ये पेड़ कहाँ था? ग्वालियर में था। देखो ग्वालियर में था, और ग्वालियर के सारे लोग कहते हैं कि इस पेड़ के पत्ते खाते ही हम अच्छा गा सकते हैं। क्यों कहते थे ऐसा? क्योंकि वो तानसेन के टॉम्ब था, यानी कि तानसेन का जो घर था वहां पर ये पेड़ था, इसलिए। तो आज के सेशंस में ले इतना ही। जब नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तब इस चैप्टर की एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। सो तब तक के लिए सभी को गुड बाय।